کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 12 مئی کو دوپہر 2 بجے ہوگا۔ ایجنڈا جاری۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے۔ بھارتی حملے کے خلاف حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے متفقہ قرارداد پیش کی جائے گی۔ اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹسز، تحریک التوا کے استحقاق بھی پیش کی جائے گی۔ دی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی ترمیمی بل 2025 ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ آج بالکل پنجاب اسمبلی کا 25واں اجلاس 12 مئی کو روز دوپہر 2 بجے ہوگا، جبکہ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے، جبکہ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول اور قومی ترانے سے ہوگا۔ جبکہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں بھارتی حملے کے خلاف حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے متفقہ قرارداد پیش کی جائے گی، جو کہ منظور پہلے سے ہی کروا لی گئی ہے۔ جبکہ ہم کو بتاؤں تو ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی بلا جواز متفقہ طور پر اجازت دی ہے کہ اجلاس میں جو ہے وہ حملے کے خلاف حکومتی اور اپوزیشن متفقہ جو قرارداد ہے وہ پیش کریں۔ جبکہ اگر میں بتاؤں تو اجلاس میں لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے متعلق سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے، جبکہ اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹسز، تحریک التوا بھی پیش کی جائیں گی۔ جبکہ حکومتی بزنس میں دی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی ترمیمی بل 2025 اور دی پنجاب فرٹیلائزر کنٹرول بل 2025 ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ جبکہ یہ پنجاب اسمبلی کا 25واں اجلاس ہوگا، جو کہ بروز پیر 2 بجے شروع ہوگا۔ جی ٹھیک ہے حمزہ خورشید، بہت شکریہ آپ کا۔ فلائٹ آپریشن بند ہونے پر متعدد حج پروازیں منسوخ اور تعطل کا شکار۔ 7 سے 9 مئی کے دوران 13 حج پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور 3 ڈوز میں 4 حج پروازیں منسوخ، 9 تاخیر کا شکار ہوئی۔ اسلام آباد اور لاہور سے سعودی ایئر لائن کی 2 حج پروازیں منسوخ ہوئیں۔ فلائٹ آپریشن کی عارضی بندش سے 3080 عازمین حج کا شیڈول متاثر ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے۔ جی محمد علی بتائیے گا، کتنی حج پروازیں منسوخ اور تعطل کا شکار ہوئی ہیں اب تک؟ جی اس میں 7 مئی سے لے کے 9 مئی تک دوران جو 13 حج پروازوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ وزارت حج کی جانب سے کہا گیا کہ 3 روز کے دوران 4 حج پروازیں منسوخ، 9 پروازیں تاخیر کا شکار رہی ہیں۔ اسلام آباد اور لاہور سے سعودی عرب کی 2 حج پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ لاہور سے 3، اسلام آباد کوئٹہ سے 2، جبکہ ملتان اور کراچی سے 1 حج پرواز تاخیر کا شکار رہی ہے۔ فلائٹ آپریشن کے عارضی بندش کے باعث 3080 عازمین حج کا شیڈول بھی متاثر ہوا ہے۔ بیشتر پروازیں چند گھنٹوں کے التوا کے بعد عازمین حج کو لے کر روانہ ہو چکی ہیں۔ پروازوں کی منسوخی کے باعث رہ جانے والے 345 عازمین حج کو اسلام آباد سے پی اے کی خصوصی پرواز سے آج صبح روانہ کر دیا گیا۔ وزارت مذہبی امور کا ایسا کہنا ہے، جبکہ مزید 540 عازمین حج کو اسلام آباد اور لاہور سے خصوصی پروازوں کے ذریعے روانہ کیا جائے گا۔ وزارت مذہبی امور نے حج پروازوں کے شیڈول سے متعلق معلومات کے لیے فوری طور پہ مؤثر فراہمی کے حوالے سے مخصوص ہیلپ لائن بھی قائم کر دی ہے، اور تمام جہاں سے گزارش کی انہوں نے کہ اپنی فلائٹ حج شیڈول کے مطابق معلومات لینے کے لیے ان نمبرز پہ رابطہ کریں۔ اس حوالے سے ابھی کچھ دیر قبل لاہور سے ایئر سیال کی پرواز 300 حجاج کو لے کے آج روانہ ہوئی ہے۔ جو پرواز کل رات کو روانہ ہونی تھی، اس کو 10 سے 12 گھنٹے کی تاخیر سے آج صبح روانہ کر دیا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے محمد علی، بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ہال روڈ پر تاجر برادری کا افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ تاجروں نے افواج پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی اور پاکستانی فوج کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا اعلان کیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ جی مبین، آگاہ کیجیے گا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بھارت کی بزدلانہ کارروائیوں کے بعد پوری قوم جو ہے یکجان ہو کے کھڑی ہو چکی ہے۔ اس وقت ہم ہال روڈ پر موجود ہیں اور ہال روڈ پر ساری تاجر برادری نے پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم ظاہر کیا۔ ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ماشاءاللہ جو تاجر برادران کے رہنما اور سربراہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں بابر بھائی کیا کہنا چاہیں گے، کیا تاثرات اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس پلیٹ فارم سے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں، اس وقت خالی ہال روڈ نہیں، لاہور نہیں، پنجاب نہیں، پورا پاکستان اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور الحمدللہ ہماری فوج، پاک فوج ایک بہادر فوج ہے، جس نے کل دشمنوں نے جب رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تو الحمدللہ ہماری پاک فوج نے 5 ہتھیاروں کا ناشتہ کر کے دیا الحمدللہ، اور 2 دنوں میں انہوں نے تقریباً 70 کے قریب ڈرون بھی گرا دیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی فوج سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سرحدوں کو سنبھالے، قوم آپ کے پیچھے کری ہے، جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، جو ڈیوٹی لگائیں گے اس کا پہرا بھی دیں گے، ساتھ ساتھ
ये भी बताना चाहता हूँ और अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहला वक्त ऐसा आया है कि जब अब ना कोई सियासी जमात है, ना कोई दीनी फिरका है और ना कोई इख्तलाफ है, सब एक पेज पे। आज आप जिसको भी पूछेंगे ना, वो एक ही बात करेगा, मैं पाकिस्तान नहीं हूँ और अपने पाक फौज के साथ हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपने सुना कि कोई फिरका नहीं रहा, कोई पार्टी नहीं रही। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मौजू पे? जरा रोशनी डालिएगा कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि पूरा पाकिस्तान यकजान हो चुका है। बतौर पाकिस्तानी अफवाज के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारी और फौज क्या की आपके तो मजीद? माशाल्लाह शान ये है, हथियारे गिराते हैं तो फ्रांस के और ड्रोन गिराते हैं तो इसराइल के, तो और हराते किसको है? इंडिया को। तो याद रखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फौज ने साबित किया है कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी अल्लाह के फजल से हमारे पाक फौज के जवानों के आगे फेल है। और इंशाल्लाह उसमें सबसे बड़ी बात शहादत का जज्बा। उसमें कोई तनख्वाह के लिए नहीं फौज लड़ती। ये हमारी पाकिस्तानी फौज, ये मुसलमान फौज तनख्वाह के लिए नहीं लड़ती है, शहादत के जज्बे के लिए लड़ती है। और वो हिंदू जो है वो बेचारे तो लड़ना ही नहीं चाहते। उनकी फौज की हालत देखो, रोना पिटना उनका देखो कि वो तो माफिया मांगते हैं। ये पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है ना जी, ये इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जज्बे जहाद के जज्बे से सरशार है। क्योंकि देखिए हमारा ईमान है कि अगर हम मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। तो लिहाजा मोदी, तूने जो हमारे पाकिस्तान में निहत्ते 25-30 बंदे मासूम शहरी शहीद किए हैं, उनका बदला तो हमने लेना है इंशाल्लाह। अब तू इंतजार कर और इंशाल्लाह हम अपनी फोर्सेस को भी कहते हैं कि आपने इन निहत्तों का बदला जरूर लेना है। ये पूरी 25 करोड़ आवाम आपके शाना बशाना लड़ने के साथ नीयत से आपके साथ खड़ी है। क्योंकि आपने सुना कि पाक फिजाइया हमारी बिल्कुल, इन्होंने कहा, फख्र उम्मीद करते इसी तरह जो है पाकिस्तानी फौज का और पाकिस्तानी अवाम का जो है वो सब फख्र से बुलंद रहेगा। और इसी तरह जो है शहादत की और खुशी की जज्बे से सरशार जो है हम हमेशा फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 16 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक और सेहत की सहूलियात के लिए 9 अरब मंजूर। पंजाब में झींगा फार्मिंग के लिए 4 अरब 50 करोड़ की मंजूरी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 16 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बैरिस्टर नबील अहमद अवान ने की। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक और सेहत की सहूलियात के लिए 9 अरब रुपए मंजूर। पंजाब में झींगा फार्मिंग के लिए 4 अरब 50 करोड़ की मंजूरी दी गई है। चेयरमैन टैप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोकर का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर अबूजर शाह, सीनियर नायब सदर और नायब सदर शाहिद नज़ीर से मुलाकात। चेयरमैन टैप्टा का कहना था कि अफरादी कुव्वत की तैयारी वक्त की अहम ज़रूरत है। 388 इदारों में 160 से ज़ायद कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तामीरात पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल चेयरमैन टैप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोकर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाह, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान और नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी से मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन टैप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोकर का कहना था कि बेहतरीन है के लिए इंडस्ट्री और अकेडमिया के दरमियान मजबूत रवाबित नागजीर है। इंडस्ट्री की जरूरियात के मुताबिक अफरादी कुव्वत की तैयारी वक्त की अहम जरूरत है। टैप्टा के तहत 388 अदारों में 160 से ज़ायद कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तामीरात और हॉस्पिटैलिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। टैप्टा के कोर्सेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को मद्देनजर रखकर डिज़ाइन किए जा रहे हैं। तलबा की आलमी सतह पर कम्युनिकेशन सलाहियत बढ़ाने के लिए 5 ज़मानों के कोर्सेज भी शुरू करवाए गए हैं। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाह और दिगर का कहना था कि जिला सतह पर इंडस्ट्री से मुतल्लिका स्किल्स काउंसिल्स बनाई जाएं। तमाम नौजवान जो टैप्टा से तरबियत हासिल करें, आलमी मेयार के माहिर हों। पंजाब में स्किल डेवलपमेंट अदारों को एक ही अथॉरिटी के तहत लाया जाए। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें कि काबीना कमेटी बराए अमन अमान के इजलास में 4 कैदियों को पेरोल पर रिहा करने की मंजूरी दी गई। पेरोल पर रिहाई पाने वालों में 61 साला गुलाम रसूल, 67 साला मोहम्मद इरशाद शामिल है। पेरोल पर रिहाई पाने वाले कैदी 14 साल कैद मुकम्मल कर चुके हैं। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुताबिक अपडेट करते चले कि काबीना कमेटी बराए अमन अमान के इजलास में 4 कैदियों को पेरोल पर रिहा करने की मंजूरी दी गई। पेरोल पर रिहाई पाने वालों में 61 साला गुलाम रसूल, 67 साला मोहम्मद इरशाद शामिल है। पेरोल पर रिहाई पाने वाले कैदी 14 साल कैद मुकम्मल कर चुके हैं।
और अब मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि शहर का मौसम दिन भर गर्म और खुश्क रहा। दिन भर कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा चलने की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। अलबत्ता रात के औकात में दर्जा हरारत में कमी नुमाया होगी। मौसम का अहवाल जान लेते हैं सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम दिन भर गर्म और खुश्क रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर में दर्जा हरारत कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अभी जो है शहर के मौसम की सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी बदल रही है। दिन के औकात में मौसम में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन रात के औकात में हम देखेंगे कि दर्जा हरारत में कमी के बायस जो है शहरियों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अलबत्ता बारिश की पेशन गोई नहीं की गई, जबकि हवा चलने की रफ्तार भी महज 8 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 40% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन भर में गर्म और खुश्क मौसम देखने के बाद जो है शहरियों का कहना है कि जैसे ही दोपहर के बाद शाम के औकात शुरू होते हैं तो उसमें उनको जो थोड़ा है वो रिलीफ मिलता है। जैसे ही सूरज की किरणें जो हैं वापस चली जाती हैं, वो सूरज की किरणें अपनी आंखें बंद कर लेता है, वैसे ही शहरियों को जो है थोड़ा रिलीफ मिलता है। बिल्कुल इसी तरह हम देखेंगे कि रात के औकात में जो है शहरियों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। दर्जा हरारत 26 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। बाहर अभी भी जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद है, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है वो महसूस तो की जा रही है, लेकिन हाँ हम देखते हैं कि जिस तरह दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत महसूस की जाती है उस तरह से नहीं की जा रही, और थोड़ी सी हवा चलने से जो है मौसम शाम के औकात में खासा बेहतर दिखाई देता है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की कोई नवीद नहीं सुनाई गई। अलबत्ता जो है दिन के मुकाबले में रातें जो है वो थोड़ी सी ठंडी महसूस होंगी।